webinar. Okay. Uh, so as you know that today we have organized a webinar on search engine optimization. So we are pleased to welcome Dr. Surbhi Trivedi Madam as an expert for webinar today. If I give you the introduction about the Surbhi Trivedi Madam is working as an online coach. Before that, she has worked as an assistant professor at BIT Varnama. In addition to that, she has received PhD degree from SVNIT Surat. Her PhD research topic was designing and development of metamaterial based random structures for space-borne communications. She had also worked in ISRO response scheme. She is an official reviewer for IEEE Communication magazine and review many science index journal papers. As well as she had published more than 40 conference paper and journals, 4 books, and filed a patent. Okay, so I think uh, all of the students I requested kindly, interestingly today attend the webinar. Today's, if I am give you the description about the SEO is, SEO stands for the search engine optimization, which is the art of ranking high on a research engine in the unpaid section, also known as a organic listing. So madam is going to more give you information regarding the search engine optimization. So I welcome to the Surbhi Trivedi madam, and I request all dear students to participate actively and carefully listen and take benefit of today's webinar. Okay, Trivedi madam, are you pleased to be conduct the webinar? Yes, sir. Yes, sir. I'm ready, sir. Okay, And if we can start, thank you, sir. Thank you for the introduction. Can we start the presentation? yes, madam. Okay. Okay, dear students. Good afternoon, one and all. So my topic of today is SEO, that is Search Engine Optimization. Yes, students, am I audible? Yes. अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें okay, so can we proceed now? So the topic includes search engine optimization, and the main topic is SEO dead in 2020? So let us discuss something on this topic. Yes sir. Sir, मेरी आवाज जा रही है ना बच्चों के पास? Yes, madam, you are audible. ओके ओके, तो सबसे पहले जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो कोई भी टर्म जब हमारे लिए नई है तो हम उसको डिवाइड करते हैं स्मॉल रूट वर्ड्स में। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप सब देख सकते हैं कि एक वर्ड है ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा वर्ड है सर्च इंजन। तो जब ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करते हैं तो वो ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें हम बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव सिचुएशन का और प्रेजेंट रिसोर्सेज का यूज करके कुछ बहुत ही फ्रूटफुल बड़ी चीज हम बनाते हैं या फिर उसका आइडिया प्रपोज करते हैं, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑप्टिमाइजेशन इज द एक्शन ऑफ मेकिंग द बेस्ट और द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ अ सिचुएशन और रिसोर्स। जो भी सिचुएशंस और रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं हम उन्हीं को यूज करेंगे और उन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड सिचुएशंस से हम एक कुछ ऐसी चीज बनाएंगे एंड दैट आइडिया और द थिंग विल बी हेल्पफुल फॉर आवर बेनिफिट। तो उस चीज को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप मेरे डायग्राम में देखिए ऑन द राइट टॉप कॉर्नर, तो आपको पता चलेगा ये मार्केटिंग में आजकल यूज हो रहा है। इट इज ऑल्सो यूजिंग फॉर रैंकिंग, फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, where is all over the internet, SEO plays a very important role. So great search engines, आप सबने सर्च बहुत किए होंगे। कभी भी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी आपको नया टर्म होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यू जस्ट पिक अप योर मोबाइल और मोबाइल पे वो टर्म आप
आजकल तो टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल बोल देते हो। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि उस टर्म का या फिर उस वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस। सो कैन यू टेल मी सम गुड सर्च इंजिन्स जो आज तक आपने यूज किए हैं? तो सर्च इंजिन्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट आर सर्च इंजिन्स। यस, कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिन्होंने सर्च इंजिन्स यूज किए हैं? सबसे कॉमन एंड सबसे बड़ा जो सर्च इंजन हम सब यूज करते हैं अपने डे टू, दैट इज Google. यस, वेरी गुड, आई गॉट माय राइट आंसर। सो दैट इज गूगल। कुछ भी नहीं है तो गूगल बाबा तो है ही। सो हमारे सारे सर्च के ऑलमोस्ट 99% आंसर्स गूगल के पास हैं। बाकी भी सर्च इंजिन्स जो आजकल मार्केट में हैं, देयर आर यू कैन लिस्ट अराउंड 17 टॉप सर्च इंजिन्स। तो इस तरह से आप बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम सर्च कर सकते हैं। मगर अब बात आज जो है वो है SEO के बारे में। आई विल ऑल्सो ट्राई, अगर आप सब आई थिंक यू आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी एंड ઘણું બધું પાર્ટિસિપન્ટ્સ આર ફ્રોમ ગુજરાતી બેકગ્રાઉન્ડ, સો હું પણ ટ્રાય કરીશું થોડું પણ ગુજરાતી બોલવાનું, તમે પણ ટ્રાય કરશો મારી સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવાનો. ઓકે, my Gujarati is very poor, so please sorry for that, for wrong grammar. So if I can connect with the audience, I can use Hindi, है ना, और गुजराती भी I can understand properly, अच्छे से पूरी समझ में आती है, तो यू पीपल कैन इंटरेक्ट विद मी इन गुजराती ऑल्सो, गुजराती में बात कर सकते हो। अभी तक मैंने केवल ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन को डिवाइड करके आपको केवल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब समझाया, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या है। हम आज ये टॉपिक और इस टॉपिक के बारे में पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि search engine optimization is a way to bring traffic to your website organically. आप सबको पता है आजकल हर एक 7th क्लास का बच्चा भी वेबसाइट डिजाइन कर रहा है। तो जब आजकल कोडिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग इतनी कॉमन हो चुकी है, तो एक होड़ मची है हर एक स्टूडेंट्स और हर एक डिजाइनर के बीच में, जिसमें वो ये चाहता है कि उसका बनाया हुआ कंटेंट गूगल में या फिर कोई भी सर्च इंजन में टॉप मोस्ट दिखे। क्योंकि आपको भी पता है जब भी आप सर्च करते हो यू ओनली क्लिक फर्स्ट टू, आपको फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का आपने मीनिंग टाइप किया, आपको पहले ही जो आंसर मिल गया, यू एक्सेप्ट दैट आंसर। 99% ऑफ द पीपल दे डोंट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, वो पहले ही पहला आंसर देख के सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो दिस इज, यहाँ से कंपटीशन चालू होता है कि कौन पहले आएगा। तो कौन पहले आएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो SEO में हम ये सीखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू ब्रिंग ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब आपको लोगों को, इस केस में, इस रेफरेंस में ट्रैफिक का मतलब है द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग योर वेबसाइट, जितने लोग आपकी वेबसाइट को डेली देख रहे हैं। तो वो लोगों को बढ़ाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स की जाए, या फिर आप ऐसी क्या चीजें कर सकते हो अपने वेबसाइट पे या फिर अपने कोई भी गूगल रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ऑर्गेनिकली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें केवल पैसा देखो तमाशा देखो वाली होती हैं। आप केवल पैसा दीजिए और आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। इस चीज में हम पढ़ाई करके उस चीज को समझेंगे और एक पैसा भी नहीं देंगे और अपना रैंक फर्स्ट नंबर पे करेंगे। एम आई लाउड एंड क्लियर टू द ऑडियंस? Yes, yes. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब सुनिए, अब आपको SEO समझ में आ गया। SEO हम क्यों पढ़ रहे हैं आज के जमाने में 2020 में, हमें इसकी क्या जरूरत है, क्या ये अब डेड हो चुका है? ये सारी चीजें आप इस प्रेजेंटेशन के बाद समझ पाओगे और रिलेट कर पाओगे। तो SEO, जिससे हमने ट्रैफिक को, मतलब लोगों को बुलाया अपनी वेबसाइट को विजिट करने के लिए विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, एक पैसा भी बिना खर्च किए मैंने लोगों को अपनी वेबसाइट पे अट्रैक्ट किया। एंड हाउ विल आई अट्रैक्ट देम? फॉर एग्जाम्पल वी कैन रैंक इमेजेस। आपकी इमेजेस होती हैं जो मोस्ट कॉमनली पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो जो भी हो, इमेजेस देखना पसंद करते हैं, तो आप अपनी इमेजेस को रैंक करवा सकते हो। आजकल यूट्यूब वीडियोस आर वेरी कॉमन, हर कोई गांव-गांव में लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं फॉर न्यू रेसिपीज, फॉर न्यू फैशन, फॉर न्यू मेकअप स्टाइल्स, फॉर, अगर ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो पढ़ाई के अलावा भी इन चीजों को देखते हैं और वो आपकी
ट्रैफिक में इंक्लूड होते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने रेगुलर स्टडी कंटेंट्स देखते हैं, मगर वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजें भी कवर अप करते हैं। तो हमें ऑडियंस जो है उन ऑडियंस को बढ़ाना है, एंड वो ऑडियंस जो हमारी वेबसाइट की बढ़ती है उसको ट्रैफिक टर्म दिया गया है। तो रैंक करना है आपको इमेजेस को, आपकी वीडियोस को रैंक करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एसईओ जो हमें हेल्प कर सकती है, वो है हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। मतलब अगर आज मैं कोई सामान बेच रही हूँ, तो अगर मेरा सामान पेज नंबर 10 पे आएगा तो ऑब्वियसली उसकी शॉपिंग कम होगी। बट उसी सामान को अगर मैं रैंक करवा के पेज नंबर 1 पे ले आऊं और आगे की एक दो साइट्स में ही मेरा नंबर हो, तो द शॉपिंग विल बी ट्रेमेंडसली हाई। तो ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएंगे और देखेंगे तो ही खरीद पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि आजकल एसईओ को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी चीज ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इवन अपना कोई चैनल स्टार्ट कर रहे हो, आजकल तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ही डिजिटलाइज्ड है, तो एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो what is SEO in technical term? This means that how many searches per month, वो आपको एक कैलकुलेटरी फिगर दे देगा कि कितने सर्च आपके हर एक मंथ में किए हैं। अब आपको ये डाउट आएगा या फिर ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ SEO स्टार्ट्स, ये इसकी चालू, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? इसका जो शुरुआत हुआ है वो वॉर ऑफ रैंकिंग की वजह से हुआ है। हर किसी में एक होड़ है फर्स्ट आने की, एक रैट रेस लगी हुई है जिसमें हर कोई दूसरे से फर्स्ट आने को कंपटीशन कर रहा है। तो इस चीज की वजह से एसईओ आज इतने इम्पोर्टेंट टर्म है, और आज हम इसके लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन। इस एसईओ प्रोग्राम्स के लिए बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस एंड प्रोग्राम्स चलते हैं। नाउ अगर आप सब स्टूडेंट्स के पास अपना मोबाइल या कोई ऐसा कोई भी साधन अवेलेबल हो जिसमें आप टाइप कर सको बेस्ट होस्टिंग गूगल पे, आप सबके पास मोबाइल और वो होगा, तो आप एक बार टाइप करके देखो बेस्ट होस्टिंग। एक एग्जांपल देके मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी। तो कैन यू सी माय कर्सर ऑन द स्क्रीन? कैन यू सी माय कर्सर? Yes, ma'am. अच्छा, तो अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है तो आपको यहाँ पे एक AD दिख रहा है, एड, AD, एड। एड मतलब Yes. विज्ञापन, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग में अब आपको सिखा रही हूँ। अगर आप ये टाइप करो गूगल पे बेस्ट होस्टिंग, दीज विल बी द फर्स्ट फ्यू आपको जो साइट्स अवेलेबल होंगी ये दिखेंगी। अच्छा, ये एड जो आपको दिख रहा है, कभी भी किसी ने सोचा इसका क्या मतलब है एडी का? ये जो एडी दिखता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, कोई बता सकता है ऑडियंस में से? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। Google Ads. यस, गूगल एड्स। मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो इनिशियली आपको एड या स्पॉन्सर्ड दिखते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं गूगल को फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कई बार क्या किया जाता है, हम गूगल को कुछ अमाउंट पे करते हैं कि प्लीज यू रैंक माय पेज ऑन द टॉप। तो जिस हिसाब से उनका भी पूरा का पूरा स्कीम होता है, वो कहते हैं ना पूरा बिजनेस बाजार लेके बैठे हैं ये लोग। गूगल में भी हमें अपना पेज, अपना रैंक किस नंबर पे कराना है उसके हिसाब से हमें पैसे उनको देने हैं, और उस हिसाब से वो हमारी रैंकिंग भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने बेस्ट होस्टिंग टाइप करी, आप देखिए उसमें क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सिमिलरली मैंने ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक टाइप किया गूगल में, आप इधर देखिए ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक में कहीं भी ऐड आ रहा है, एडी एड। बिकॉज ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक खरीदने वाली चीज नहीं है, वो समझने वाली चीज है। उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगाया है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि मैंने आपको बोला है, दो तरीके से हो सकता है, पेड और ऑर्गेनिक। अच्छा, आप कौन सा प्रेफर करेंगे? आप पेड, आप पैसा देना प्रेफर करेंगे कि आप ऑर्गेनिक को समझना प्रेफर करेंगे? Organic. हर कोई जो भी हम नई चीज ट्राई करते हैं तो हम उसका ट्रायल मांगते हैं, या फिर हम थोड़ा सा चखते हैं ना। हम अचार खरीदने जाते हैं तो उसको कहते हैं कि थोड़ा सा चख के हम खरीदेंगे। तो हम कभी भी पैसा नहीं लगाते, पहले उस चीज को पहले हम थोड़ा सा फ्री में यूज करना चाहते हैं या फ्री में उसका टेस्ट लेना चाहते हैं, तभी हम अगर हमें पसंद आती है तो हम उसको खरीदते हैं। तो
बात ये होती है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिकिंग उसको कहते हैं कि हम कुछ एल्गोरिथम्स लगाएंगे। अगर आप वेबसाइट डेवलपर्स हो तो उसके कुछ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं। यूट्यूबर हो आप तो यूट्यूबर के सेट ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं टू रैंक योर वेबसाइट्स, योर यूट्यूब वीडियोस ऑन द फर्स्ट पेज। सिमिलरली देयर आर सम एल्गोरिथम्स। अभी ये तो उन चीजों की बात हो रही है जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो पैसा नहीं लगाना चाहते। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़े पैसे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो जिनके पास टाइम नहीं है और पैसे ज्यादा है, उनके लिए भी ऑप्शन है पेड। वो कुछ नहीं करते, उनको इतना एल्गोरिथम लगा के इतना लंबा उसका पूरा प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं है। तो देयर आर मेनी मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, उसमें उनको केवल पैसे देने हैं। और आप इधर देखिए, कैन यू सी माय कर्सर, स्पॉन्सर्ड लिंक्स दिख रहा है आपको ऑन द टॉप? Yes, ma'am. हाँ, ये जो आपको स्पॉन्सर्ड लिंक्स जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं ना, दीज स्पॉन्सर्ड लिंक्स मींस दैट दे आर द पेड वंस। इन लोगों ने पैसे दे के अपने को ऊपर रखा है। अब देखिए इनका फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, बट ऊपर आने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर आज के बाद आप गूगल हो तो प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आप जो ऊपर देखते हैं, अगर वो स्पॉन्सर्ड लिंक्स है, एड्स उसमें अटैच्ड हैं, तो दोज आर द पेड वर्जन। हो सकता है उसका कंटेंट एकदम ही पुअर हो और उन्होंने पैसे देके अपने को इनिशियल फर्स्ट 4-5 में रखा हो, बट इनको भी बीट कर सकते हैं आप एल्गोरिथम से, क्योंकि जो आप पढ़े लिखे हो, आपके पास टाइम है और पैसे वेस्ट करना जरूरी नहीं है। तो यू कैन ट्राई ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। आप एसईओ को करोगे आज के लेक्चर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंजीनियरिंग सिलेबस में कहीं भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इन डिटेल कहीं आता नहीं है। डू यू पीपल हैव एनी टॉपिक और द चैप्टर्स बेस्ड ऑन एसईओ? No. No, madam, we don't have topics in our curricula. Exactly. So that is the problem. The things that we are going to use so often, and हमारा future जिस चीज पे शायद आप में से बहुत सारे लोग वेबसाइट डेवलपर्स बनेंगे, बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपर्स बनेंगे, बहुत सारे लोग the things which are reselling nowadays, many online services are available. You need not to move outside your home, and just sitting you can earn lots and lots of money. तो जो चीजें हमें यूज आने वाली है वो चीजें हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। और ऐसी चीजों को समझने के लिए प्रैक्टिकली आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, खुद कर करके देखना पड़ेगा। तो क्योंकि आज केवल आपके सामने डिजर्ट रखा गया है, सबसे पहले डिजर्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाएगा इस पूरे लेक्चर में। आई कैन ओनली शो यू व्हाट एसईओ इज ऑल अबाउट और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देन इफ यू हैव इंटरेस्ट एंड इफ दिस इज of your interest area, उसके बाद आपको स्टडी करने के लिए you will have a number of resources all over the websites. You will be having best courses available. उसके बाद आपके लिए directions खुले हैं. My job is to only show you the path. Then whether you want to follow it or not, that is your choice. But in today's lecture I will only guide you what is SEO, what are the different techniques. Now this topic जो अभी बोर्ड पे आपको दिख रहा है, उसमें मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बताऊंगी जो आपको गूगल में ब्लू लाइंस की चीजें दिखती हैं। दैट इज द मेन फर्स्ट लाइन जब आप कुछ भी टाइप करते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने 18 ways टू अर्न मनी, आपने कुछ भी अर्न मनी ऑनलाइन डाला तो यू विल बी गेटिंग मेनी रिजल्ट्स। तो अर्न मनी ऑनलाइन में टाइटल कहलाता है, जो फर्स्ट लाइन होता है उसको हम टाइटल बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे आप सबने देखा होगा एक ग्रीन कलर की लाइन होती है, ठीक है? जो ग्रीन कलर की लाइन होती है वो यूआरएल होती है। वो यूआरएल और उस वेबसाइट के बारे में जहां पे भी ये हमें इंफॉर्मेशन है उसके बारे में रहता है। अब एक जनरल वर्ड में अभी यूज कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन। उस टॉपिक के बारे में, उस टाइटल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रहता है। अब इस डिस्क्रिप्शन का कितना इंपॉर्टेंस है वो आप समझो, और क्यों आजकल कंटेंट राइटर्स भी हायर किए जाते हैं। मतलब अगर आपकी केवल इंग्लिश पावरफुल है या फिर फॉर एग्जाम्पल हिंदी पावरफुल है, गुजराती पावरफुल है, तो आपको फ्रीलांसिंग जॉब्स मिलती हैं। तो उसके लिए कहाँ आजकल ये जरूरत पड़ रही है और वेयर आर द पूरी की पूरी बड़ी मार्केट कहाँ डेवलप हो रही है वो मैं आपको समझाती हूँ। क्लिक टू रेट CTR, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो हम इतना एसईओ कर रहे हैं इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
इफ योर वेबसाइट इज क्लिक्ड बाय 10 पीपल आउट ऑफ 100, ये मैं आपको मैथ्स के टर्म्स में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हम सब इंजीनियरिंग के बच्चे हैं और हमें हर एक चीज मैथमेटिकल फिगर्स में बड़े इजीली समझ में आ जाती है। इसमें कोई लैंग्वेज भी बैरियर नहीं होती और ये चीजें इजीली समझ में आने वाली हैं। तो जितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे उसको क्लिक थ्रू रेट कहा जाता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं, टोटल 100 में से 10 लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, तो आपका CTR 10% हो जाएगा। तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट योर CTR। ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हो तो आपको मैथ्स की समझ में ज्यादा आएगा। तो CTR इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि हमारा CTR ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। SEO रैंकिंग के लिए माय CTR शुड बी मोर और लेस? More. इट शुड बी मोर। तो जितना CTR होगा तो माय SEO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CTR। दोनों में रिलेशन है और जितना ज्यादा CTR होगा उतना ज्यादा SEO होगा। नाउ द फ्यू टर्म्स विच आर वेरी टेक्निकल टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन के लिए, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के लिए, वो होती हैं कीवर्ड्स। सबसे पहले आपके माइंड में वो शब्द होने चाहिए जिस शब्द के बारे में या फिर जिस आपने फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ लिखा है, हर एक का अपना इंटरेस्ट एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट एरिया रूबिक क्यूब है। रूबिक क्यूब के बारे में कितने लोग जानते हैं? वो जो 9x9 का एक क्यूब होता है जिसको ऐसे गोल गोल घुमा के खेलते हैं ना, एक कलर्स बन जाते हैं एक साइड में, फिर दूसरे कलर्स हम दूसरे साइड में बनाते हैं उसके। रूबिक क्यूब कितने लोगों ने खेला है? एक क्यूब होता है वो क्यूब। अच्छा, रूबिक क्यूब आपके लिए नया चीज है कि खेला है किसी ने? केला Yes. अच्छा, खेला है ना। हाँ, उसमें एक एक साइड में ऑरेंज कलर हो जाता है, दूसरे साइड में ग्रीन कलर हो जाता है। अभी आप अगर स्क्रीन, आई विल शो यू, अगर आपका स्क्रीन ऑन करके आई विल शो यू द रूबिक क्यूब आपके बेड में है। मैं रूबिक क्यूब आपको दिखा दूंगी। तो रूबिक क्यूब के बारे में फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट बनाई, तो अगर आप अपनी वेबसाइट रूबिक क्यूब के बारे में बना रहे हैं तो उसके बारे में कीवर्ड क्या हो सकते हैं? रूबिक क्यूब, कलर्स, सेम कलर, फेसेस, एजेस, ये सारे उसके कीवर्ड्स कहलाते हैं। मतलब मेरी वेबसाइट अगर रूबिक क्यूब के बारे में है तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं। मैं ये सारे यूज करूंगी अपने पूरे के पूरे आर्टिकल में या फिर मेरे पूरे के पूरे वेबसाइट में ये वर्ड्स कई बार होंगे। तो keywords are the single words or the phrases of a particular SEO importance for a given page or a website। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जिस भी चीज की बात कर रहे हैं उस चीज के बारे में आप एक एक उसके एक एक पार्ट को लेके, एक एक कंपोनेंट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज करो, और वो जो कीवर्ड है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आर्टिकल में। तो आपके आर्टिकल से पता चल जाएगा आप किस हिसाब से और कितने अच्छा आप लिखते हो। इसके लिए देखिए क्या होता है, कई लोगों का राइटिंग अच्छा नहीं होता, राइटअप वो अच्छे से नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते अच्छे से, बट उनके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, उनके आइडियाज बहुत सुपर्ब होते हैं, उनको बहुत बड़े बड़े वेबसाइट को डेवलप करने के स्कीम्स पता होती हैं, एल्गोरिथम्स पता होती हैं, बट वो लिखना अच्छे से नहीं जानते। तो आजकल कंटेंट राइटर्स हायर किए जाते हैं, उसमें आपको पर वर्ड पेमेंट मिलता है। और बिलीव मी, ये केवल लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, इंग्लिश ही नहीं, हिंदी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज में कंटेंट राइटर्स का आजकल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आपने देखी होंगी गुजराती वेबसाइट्स भी होती हैं जिसमें कंटेंट्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो आप एज अ कंटेंट राइटर भी अपना पोस्ट ले सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच विल बी इम्पोर्टेंट, एंड आपका फ्यूचर इसी का है। जो जिस फ्यूचर में आप निकलने वाले हो, जहाँ पे आप जब पढ़ के बाहर आओगे तो आपका फ्यूचर पूरा का पूरा डिजिटलाइज्ड है। तो यू शुड नो दीज वेरियस थिंग्स। तो कीवर्ड्स की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। नाउ आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद द वर्ड कीवर्ड। Okay, now okay, so now the next word terminology is keyword density। अब आप ये समझो कि अगर मैं कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने शूज को समझाना चालू किया और शूज के बारे में एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल में मेरे 2000 वर्ड में से 20 बार मैंने शूज 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 बोला, ठीक है। तो शूज शूज जब मैं 20 बार बोल रही हूँ और 2000 मेरे टोटल वर्ड्स हैं,
तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? बार बार वो बोलते हैं ना संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा मतलब एक बार शूज बोलो ना, बाद में उसको इट करके या फिर इट करके सिंबलाइज करो, प्रोनाउन जैसा यूज करो, नाउन एंड प्रोनाउंस। हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं मेरा शूज अच्छा है, इट इज ऑफ ब्लैक कलर, इट इज वेरी कंफर्टेबल, ऐसे बोलते हैं। मगर जब हम एसईओ के बारे में बात करते हैं, तो एसईओ में जो वर्ड पे आपको फोर्स देना है, एम्फेसाइज देना है, उसको आप बार बार यूज करो। आप अपने आर्टिकल में यूज करो, आप यूट्यूब चैनल बनाते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में, टैगलाइंस में, आप उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में, हर जगह इस वर्ड्स को बार बार यूज करो, शूज को। तो आप जितनी बार शूज वर्ड यूज करोगे ना, दिस इज द पॉजिटिव एट्रीब्यूट ऑफ योर वेबसाइट, वो आपको उतना ऊपर रैंक करेगा। ये मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें बता रही हूँ जो एसईओ में आप यूज कर सकते हो। आज भी आप जाके वर्डप्रेस में एक छोटा सा वेबसाइट बना सकते हो और मेरी ये 3-4 छोटी छोटी टेक्निक्स को अप्लाई करके देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क्स। तो अभी आपको क्या करना है, अगर शूज के बारे में डिस्क्राइब करना है तो शूज के नाम को ही बहुत बार लेना है। तो अगर आपका 20 टाइम्स इन 2000 वर्ड्स अगर आप लेते हो, तो आपका केडी रिप्रेजेंट्स कीवर्ड डेंसिटी, वो 1% आएगा। सो दिस इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड द कीवर्ड डेंसिटी। सो कीवर्ड डेंसिटी अब मुझे कौन बताएगा, हाउ इज द कीवर्ड डेंसिटी रिलेटेड टू एसईओ? ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए, तो कीवर्ड डेंसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि हमारे डोमेस्टिक फार्म्स होते हैं ना, फार्म जिसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स को रखते हैं, उसको हम फार्म कहते हैं। फार्म मतलब जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें, उसी तरह से लिंक जहाँ पे हम रखते हैं उसको लिंक फार्म कहते हैं। दैट इज द फॉर्म ऑफ लिंक्स। मतलब मैं एक ऐसा फार्म बनाऊंगी जिसमें बहुत सारे लिंक्स रखूंगी। तो नेटवर्क ऑफ साइट्स क्रिएटेड बाय यू टू बिल्ड लिंक्स फॉर योर प्राइमरी साइट। आप ये याद रखना कि कोई भी एक चीज को जो मैंने बना दी है वो तब तक इम्पोर्टेंस नहीं लेती जब तक 10 लोग ना कहें कि हाँ वो अच्छी है, वो अच्छी है, वो अच्छी है। अगर आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो ना, आप 10 लोगों से रिव्यू लेते हो। आजकल तो ऑनलाइन रिव्यूज अवेलेबल हैं। तो आपने एक छोटा सा एक चीज परचेज किया, यू विल सर्च एंड यू विल सी द रिव्यूज ऑफ द रिव्यूअर्स, ऑफ द पीपल हु हैव ऑलरेडी यूज्ड द प्रोडक्ट। करते हो कि नहीं करते? कभी कोई चीज खरीदने जाते हो तो रिव्यू पढ़ते हो ऑनलाइन? Yes. तो आजकल कितना बड़ा यूज। और आप ये सुनो, रिव्यू लिखने के भी आजकल पैसे होते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बच्चों का एक फ्लिंटो बॉक्स आता है, या फिर एक कोई भी, आई शुड नॉट नेम द प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली, बट आप कोई भी एक ब्रांड ले लो, वो ब्रांड आपको पे करती है कि आपको मैं इतना दूंगा एंड यू प्लीज राइट अ गुड रिव्यू ऑन माई प्रोडक्ट। तो उसके भी पैसे हैं। इसलिए आई एम टेलिंग यू, यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड यू विल नॉट हैव टू मूव आउट टू अर्न मनी। So, network of sites created by you to build links for your primary site. जो भी आपका प्राइमरी बिजनेस है, कोई भी आपका प्राइमरी टॉपिक है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, उसके 10 अलग ऐसे लिंक होने चाहिए जो आपकी लिंक को डायरेक्शन दें। मतलब वो ऐसा कहें कि आपकी लिंक, उनकी लिंक के बाद आपकी लिंक खुल जाए, या फिर उनकी लिंक आपके लिंक की तारीफ करे। तो उसके लिए आपका सबसे इजी तरीका क्या है? क्या कोई बता सकता है मुझे? ऐसे 10 लिंक हम कहाँ से लाएंगे जिससे जो हमारी तारीफ करें? I think affiliate marketing. यस, माय वॉइस इज क्लियर नो एट योर एंड? मेरी आवाज क्लियर आ रही है एकदम? Yes, madam, it is clear. ओके, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है। हाँ बोलिए। Affiliate marketing. ओके, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग, कुछ बताना चाह रहे हो, मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, She wanted to give your answer. She is saying that affiliated marketing, through affiliated marketing. Very good. So I think people are into this thing, and people are actually now learning the new terminology. Very good. I don't know the name, but I'm very impressed with the answer. तो आप ये समझिए कि कोई भी साइट्स, एफिलिएट मार्केटिंग इज वेरी हाई टर्म। बहुत अच्छी बात है कि आपको इसके बारे में भी पता है, और दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एफिलिएट मार्केटिंग nowadays many youngsters are doing, right? With studies you can do it.
बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी एक सबसे इजी चीज है कि आप यू मेक योर ओन वेरियस लिंक्स। आप अपनी, दे आर कॉल्ड एज द बैक लिंक्स। आपको क्या करना है, वेरियस बैकलिंक्स आर द सिंपल, दे सिंपली अ लिंक प्लेस्ड ऑन समवन एल्स वेबसाइट दैट पॉइंट्स बैक टू योर वेबसाइट। बैकलिंक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एसईओ। आप क्या करो, आपका एक नेटवर्किंग, सबसे इजी मैं एक फॉर्म बताती हूँ। आप खुद अपने 10 डिफरेंट मॉड्यूल्स पे वेबसाइट्स बनाओ और उन 10 डिफरेंट मॉड्यूल्स की वेबसाइट्स को इंटरलिंक कर दो। सो दिस वे यू आर एनहांसिंग योर ओन, आप अपने आप ही अपना बढ़ावा दे रहे हो, अपने आप ही वो 10 लिंक्स जो आपने डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाई हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो इस तरह से तो आप प्राइमरी लेवल पे करोगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके बिजनेस बढ़ेंगे, आपके लिंक्स बढ़ेंगे, तो द सेकेंड थिंग इज आप किसी और की वेबसाइट पे अपने लिंक का एक पॉइंट उसमें ऐड कर दीजिए, और उसकी वेबसाइट को जितने लोग विजिट करेंगे वो आपकी लिंक को बैक, ये बैक लिंक कहलाती है। एंड वेरी गुड, एफिलिएट मार्केटिंग इज आल्सो समवॉट रिलेटेड टू इट, एंड इट इज आल्सो हैविंग वन वास्ट टॉपिक। सो बैकलिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एसईओ। तो इस तरह से भी हम अपने विजिट का, वेबसाइट विजिट्स को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, हर एक चीज जिसको हम पढ़ रहे हैं आज के समय में, हर एक चीज के साथ प्रॉस एंड कॉन्स, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। सो अच्छाई भी है और इसके साथ बहुत सारी बुराइयां भी अटैच्ड हैं। तो कोई भी चीज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट द प्रॉस एंड द कॉन्स, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें उसके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं पता है, विल नॉट बी एबल टू डील विद इट। तो लाइक एवरीथिंग एल्स, एसईओ के भी डार्क साइड हैं, और उस एसईओ को ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं। ब्लैक हैट एसईओ वो सारी प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करता, को लेता है जो मैनिपुलेटिव है, जो अनएथिकल है, और लॉन्ग रन में वो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। आप कई बार बहुत हाई रैंकिंग की होड़ में और उसके रैट रेस में आप इस तरह फंस जाते हो कि वो आप इतना अपने वेबसाइट को ऊपर रैंक करने के लिए आप कुछ नेगेटिव रास्ते भी ले सकते हैं, या फिर कुछ गलत चीजें भी, अनएथिकल चीजें भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें करने के लिए जब आप करते हो तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको सफलता मिले, मगर लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन मतलब काफी सालों में, आपकी वेबसाइट भी बैन हो सकती है, आप सर्च इंजन से निकाले जा सकते हो, आपके टॉपिक्स बैन करके उसको ब्लैकलिस्टिंग कर सकते हैं। कई रिव्यूअर्स और कंटेंट राइटर्स को ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है, गूगल खुद ब्लैकलिस्टिंग के लिए बहुत फेमस है, और वो बहुत बार अकाउंट्स हैं। तो दीज आर वेरियस थिंग्स विच यू शुड नॉट प्रैक्टिस। कोई भी चीज हमें करनी है तो सही रास्ते से ऊपर जाना है, कोई भी नेगेटिव चीज हमें नहीं लेनी है। अब क्योंकि हम आज टेक्निकल टर्म्स समझ रहे हैं, क्योंकि आज जब टेक्निकल टर्म्स हमारे मुंह पे आ जाएगी तो नेक्स्ट टाइम जब मैं एसईओ के बारे में आपसे बात करेंगे तो यू विल बी मोर acquainted with the concept, आपको ज्यादा समझ में आएगा। Yes, am I audible to the audience? Yes. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. सर ठीक है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको फर्स्ट पेज में डिस्क्रिप्शन दिखाया था उसका टेक्निकल नेम है मेटा डिस्क्रिप्शन। कोई भी आप ब्लॉग लिखते हो, आप कोई भी पेज अपना बना रहे हो, वेब पेज बना रहे हो, आप कोई भी पोस्ट लिख रहे हो, तो उसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो कहलाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि गूगल के नीचे दिखता है। दिस डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिस्प्लेड एनीवेयर ऑन द ब्लॉग, आपके ब्लॉग पे नहीं दिखेगा, मगर जब वो आप पेज डिजाइन करते हो ना, वर्डप्रेस अगर आपने कभी यूज किया हो, किसी ने भी वर्डप्रेस यूज किया है फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, किसी ने भी किया है, छोटा सा एक वेबसाइट किसी ने बनाया? स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट ने ट्राई किया हो तो? मैम ब्लॉगर यूज किया हुआ है। ब्लॉगर यूज किया ना, वेरी गुड। तो ब्लॉगर अगर यूज किया है तो वेबसाइट डेवलप, ये जो आप देख रहे हो ब्लॉगर इज वन साइड, देन वर्डप्रेस इज अनदर, तो दोनों एक जैसे हैं। ब्लॉगर में कभी भी आपने मेटा डिस्क्रिप्शन टॉपिक देखा? आप जब आपने ब्लॉगर यूज किया होगा तो उसका एक ऑफ पेज होता है। ऑफ पेज मतलब जो ऑडियंस को नहीं दिखता, जो आप डिजाइन करते हैं, आप सेट करते हो, उसमें एक मेटा डिस्क्रिप्शन आता है। कई बार हम जब कोई भी पेज डिजाइन करते हैं ना, तो हम ये सारी चीजों को इग्नोर करते हैं कि अरे ये कौन भरेगा इतना, ये थोड़ी ना दिखने वाला है पेज में।
बट पेज में जो चीजें नहीं दिखने वाली हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करती हैं। तो आप याद रखना, अगर जो ब्लॉगर यूज कर चुका है वो आप जरूर मेटा डिस्क्रिप्शन जो बैकएंड पेज में आपको दिखेगा, दैट शुड बी फिल्ड, वो भरा होना चाहिए। अगर वो आपने अच्छे से लिखा है ना मेटा डिस्क्रिप्शन, तो गूगल आपको हाई रैंकिंग देगा और उसके हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इफ मेटा डिस्क्रिप्शन इज नोन, इसके बाद आता है मेटा कीवर्ड्स। मेटा कीवर्ड्स में भी वही जो मैंने आपको कीवर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स बताए, वही कीवर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं, मगर जो हम सर्च इंजिन्स की रैंकिंग के लिए यूज करते हैं उनको मेटा उनके प्रीफिक्स में लगा होता है। अब मेटा डेटा वही डेटाज हैं जो हमने सर्च इंजिन्स में अपनी वेबसाइट के बारे में डाले हैं। अब वेबसाइट्स के बारे में आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया, अपने शूज की वेबसाइट बनाई है, शूज आप सेल कर रहे हो, तो उसके पूरे डिस्क्रिप्शन में, उसके कीवर्ड्स में, उसके डेटा शीट्स में, हर जगह पे शूज वर्ड काफी बार आना चाहिए। ब्लैक शूज कॉमा, शाइनिंग शूज कॉमा, मतलब हर एक में आपको शूज लिखना है। तो दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव द SEO ऑफ योर पेज। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कीवर्ड डेंसिटी, और इसके बारे में इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि हमारे नॉर्मल डे टू डे इंग्लिश में एक बार अगर हमने शूज बोल दिया, बार बार मैं शूज बोलूंगी ना, तो आपको खुद सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और मुझे ग्रामेटिकली भी वो सही नहीं है। एक बार मैंने शूज बोला तो दूसरी बार मैं बोलूंगी इट इज ब्लैक, इट इज शाइनी, इट इज वेरी ड्यूरेबल, इट इज वेरी कॉस्टली, मैं ऐसे से बात करूंगी उसके बारे में। मगर आपकी SEO में उस शूज को बार बार लिखना जरूरी है, तभी आपकी रैंकिंग अच्छी होती है। सो देयर आर टोटल 2 मेन एलिमेंट्स ऑफ SEO। क्या क्या मेन एलिमेंट्स है? एक तो आपका जो पेज पे दिखता है, ऑन पेज, जब भी आप ब्लॉगर आपने जैसे यूज किया है, तो ब्लॉगर में जो ब्लॉग मैं आपका ब्लॉग पढ़ूंगी तो मुझे जो दिखेगा वो ऑन पेज है, मगर आपने जिन चीजों पे वर्क किया है वो ऑफ पेज होती हैं। तो ऑन पेज इज द प्रैक्टिसेस व्हिच आर ओपन टू एवरीवन, वो ओपन पेज जो हम रीड करते हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट है। मगर ऑफ पेज SEO भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सारी वो चीजें इंक्लूड करता है जो आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करती है। तो जो चीज मुझको नहीं दिख रही है एज अ रीडर, आपका ब्लॉग मैं पढ़ूंगी तो मुझे तो केवल आपका फ्रंट पेज दिखेगा, मगर उसके लिए जो मेहनत आपने की है वो आप ऑफ पेज में मेहनत करोगे। So those are the very important link building and social sharing techniques that you should know. Now I would like to conclude my lecture. SEO services can boost, देखो ब्रैकेट में destroy भी लिखा है, वो आपका बढ़ा भी सकता है, बूस्टिंग करना मतलब इम्प्रूव करना, उसको ज्यादा भी कर सकता है या फिर कंप्लीटली उसका संहार भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है योर वेबसाइट ट्रैफिक। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है एंड आप किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। सिमिलरली ओनली अ परसेंटेज ऑफ देम, बहुत लोग बिजनेस minded people and all the online these people or the business people, they are using the concept of SEO, but only a percentage of them knows, उनमें से बहुत कम को पता है कि ये पीछे से कैसे वो ऑफ पेज SEO में हमें कैसे इंप्रूव करना है, मेटा डिस्क्रिप्शंस कैसे अच्छे से लिखने हैं, और इन सब का पूरा इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर आता है। तो इसीलिए SEO को अच्छे से लिखना और समझना, अप्लाई करना बहुत जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए। अच्छा, आप क्या गूगल को पे कर सकते हो SEO के लिए? जैसे कि मैंने बताया, देखिए सर्च लिस्टिंग तो फ्री, सर्च लिस्टिंग आर ऑलवेज फ्री, जो आपकी लिस्टिंग है वो फ्री है, बट यस फॉर रनिंग अ गूगल एड और कैंपेनिंग, SEO के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी अटैच्ड हैं जो कि गूगल हमें पे करके या फिर एड्स को उसके साथ अटैच करके हमें पे कर सकते, हम उसको पे करके रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ माय फाइनल कंक्लूजन विल बी, आप ये समझो, डाइवर्सिफाइंग एंड रिफाइनिंग SEO टेक्निक्स is the key to getting customers in the world where they don't even need to leave a search engine to get what they need। मतलब बेसिकली SEO एक ऐसी टेक्निक है जो कि 2020 पे कभी नहीं मर सकती या फिर डाई नहीं, मतलब खत्म नहीं हो सकती, बिकॉज जब तक इंटरनेट है तब तक SEO है। इंटरनेट एज यू ऑल नो, इंटरनेट का यूज बढ़ने वाला है, इंटरनेट की जरूरतें बढ़ने वाली हैं, तो जब तक इंटरनेट रहेगा हमारे साथ तब तक हमारे साथ SEO रहेगा। So SEO will not die in 2020 and even not after it.
So that they are the few things which are important to know about the topic SEO. So this completes my lecture and I will be stop sharing the screen. Yes, if you people have some doubts or you want to interact with me, you can. I'm open to your queries. This is all about my topic, SEO. Ma'am, you said, Yes. ma'am, you said key density. So if 1% is there, then Yeah. if someone spams the same word, then what will happen? Yes. So what I told you that keyword density is directly proportional to your SEO. तो आपको कीवर्ड डेंसिटी के बारे में आपको ये समझना है कि जो भी कीवर्ड डेंसिटी का मतलब यही हुआ कि कितना डेंस है कीवर्ड आपका, मतलब आप कितनी बार उस कीवर्ड को यूज कर रहे हो. तो someone else से आपका क्या, शिवम, आपका नाम, just a minute, I can read your name. Yes, शिवम yes, नाम है yes. आपका? हाँ, okay. Your question is about the keyword density, how it is useful. No, ma'am. It's if someone spams the same word again and again, so 100% keyword density. अरे 100% शिवम, अगर मैं कोई आर्टिकल लिख रही हूँ तो आप खुद सोचो कि 100% कैसे होगा. 100% तो कीवर्ड हो ही नहीं सकता. कीवर्ड डेंसिटी अगर आप कोई करे तो हाँ, कोई करे तो मैं आपको बताती हूँ ना उसका कैसा होगा. उसका ऐसा होगा कि अगर वो शूज के बारे में लिख रहा है तो उसके सारे कीवर्ड शूज 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 होंगे, ऐसा होगा, है ना. तो नो बडी, इट शुड बी लॉजिकल. जैसे अभी गूगल रैंक करेगा ना, गूगल जब देखेगा तो उसको शूज 100 मतलब सारे शूज कीवर्ड दिखेंगे तो उसको वो शूज वाले में रख देगा. योर कीवर्ड डेंसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इट शुड हैव डाइवर्स टर्म्स, है ना. गूगल को पता चलना चाहिए कि शूज के बारे में तो आप कर रहे हैं, बट शूज के बारे में क्या क्या चीजें आप एक्सप्लोर कर रहे हो, क्या क्या फीचर्स आप दे रहे हो, है ना. तो कोई भी टर्म है, कोई भी चीजें हैं, उसका लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है. तो कीवर्ड डेंसिटी विल नेवर बी मोर देन, ऐसा नहीं होता कि हम एक ही वर्ड, कोई भी चीज डिस्क्राइब जब हम करते हैं तो उसके बारे में एक दो लाइन भी लिखनी पड़ती है. शूज इज शाइनी, शूज इज ब्लैक, इस तरह से हम उसको और भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसके साथ. केवल शूज शूज लिखने से दैट इज नॉट मीनिंगफुल. तो वो गूगल रैंकिंग के समय दे हैव द एक्सपर्ट टीम, तो दे विल नॉट रैंक आवर वेबसाइट. उनको सब कुछ लॉजिकल चाहिए. एक ऐसी टर्म चाहिए, ऐसा सिनेरियो चाहिए कि मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग भी आए और थोड़े से जिनको नहीं भी समझ पड़ रहा है वो भी जब दबाएं तो उनको पसंद आनी चाहिए वो चीजें. तो वो खुद अपनी रैंकिंग को अपने हिसाब से गवर्न करते हैं. उनकी तो पूरी एल्गोरिथम, पूरी टीम बैठी है वहां पे. बट वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड वी शुड नो कि कर कैसे रहे हैं वो. तो वो चीजें समझाने के लिए आई टुक दिस थिंग. Yes, Shivam, I think I can answer your query. मैम, सो ऐसे कोई कीवर्ड डेंसिटी की कोई लिमिट है? लिमिट नहीं है शिवम, कोई लिमिट नहीं है. बस ये है कि द प्रोपोर्शनैलिटी इज डायरेक्ट. SEO is directly proportional to your keyword density, and this I am telling you, this depends upon your content. आपने कंटेंट कितना अच्छा लिखा है उस कंटेंट पे डिपेंड करेगा. आप समझ रहे हैं ना, आपने पूरा एक पैराग्राफ लिखा है कोई चीज पे, आप जो 100% बोल रहे हो ना, आपने वो पैराग्राफ में बस शूज 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 लिखे हैं. आप समझे, उस पैराग्राफ में से मुझे कीवर्ड्स उठाने हैं. आपने शायद कभी कोई आर्टिकल सबमिट किया होगा, कोई भी रिसर्च आर्टिकल, तो वन पैराग्राफ जब लिखते हैं हम तो उसमें कितनी बार आपका आया. तो पैराग्राफ में आप सोचो, आपने 100 टाइम्स शूज लिखा, वो गलत बात है ना. मतलब पूरा पैराग्राफ केवल शूज शूज से हम नहीं भरेंगे. तो इस तरह से आप समझो कि एक पैराग्राफ मैंने लिखा है किसी भी चीज पे, तो उसमें से मैं कीवर्ड्स उठाऊंगी. तो इसकी कोई लिमिट नहीं है. बट हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यूट्यूब में लिमिट होती है कि यू कैन ओनली हैव 15 कीवर्ड्स. कई वेबसाइट्स में एक वर्ड लिमिट होती है, मगर आपका डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स होती है. यूट्यूब और वर्डप्रेस वेबसाइट्स में तो आई हैव सीन देयर आर सम वर्ड लिमिट्स, और YouTube वीडियोस में भी कीवर्ड लिमिट होती है. आप किसी ने भी, आप लोगों ने YouTube वीडियोस बनाए होंगे या देखा होगा, तो कीवर्ड एक टाइम तक ही वो एक्सेप्ट करता है. द टोटल वर्ड लिमिट इज अराउंड 250 और समथिंग, एंड देन इट विल नॉट एक्सेप्ट. और जो डिस्क्रिप्शन है वो 1000 वर्ड्स का होता है. आप 1000 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, मगर कीवर्ड तो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लेके उसे डिस्क्रिप्शन में से आप नीचे लिख दो. किसी ने यूट्यूबर, एनी यूट्यूबर इन द ग्रुप? No one? Okay, Shivam. Anything else, Shivam?
Am I clear? My doubt, your doubt is clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay, Shivam. Yes. Anyone else? If anyone else would like to ask Ma'am. something? Yes. Yes. मैम मेरा एक क्वेश्चन था, आपने अभी एसईओ बताया, एसईओ के कीवर्ड्स बताया, आप कीवर्ड और एसईओ का दोनों का यूज करके हमने वेबसाइट बना दी। अब वेबसाइट पे एसईओ में ट्रैफिक आ भी गया, पर आपने बताया कि डिसएडवांटेज भी है, तो डिसएडवांटेज कैसे हो सकते हैं और हम उससे हाँ। कैसे बचे? हाँ, देखिए, मैं अभी रिसेंटली मैंने ये बात, इसी पे काफी डिस्कशन हुआ। क्या होता है कि देखो, आपने एक वेबसाइट बना दिया। फॉर एग्जांपल, आप में से किसी ने मुझे बताया, शायद ध्रुव ने बताया कि उसने ब्लॉगर यूज किया है। ध्रुव मिस्त्री ने बताया था शायद, है ना? ब्लॉगर No, किसने अच्छा, ब्लॉगर किसने यूज किया था? ब्लॉगर, मैम मैंने यूज किया था मैम। अच्छा, आपने यूज किया है। तो सुनिए, तो जब आपने ये ब्लॉगर यूज किया है तो आपको ये पता होगा कि आपका जैसे वर्ड पेज है, तो उस वर्ड पेज पे कुछ चीजें होती हैं जो हमें कभी भी नहीं लिखनी चाहिए, जो कि हमारे लिए नेगेटिव होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल योर पर्सनल डिटेल्स। अभी वो वर्डप्रेस या फिर वर्ड जो भी आप बना रहे हो, जो पेज आप फ्लोट कर रहे हो पूरे ऑडियंस के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए वो पेज ओपन है। आपने ब्लॉगर यूज किया है तो आपको ये पता होगा कि पूरे के पूरे ऑडियंस जो भी आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका पेज विजिट कर सकते हैं। राइट? एम आई राइट? या मैम। यस। सो जस्ट इमेजिन कि उनमें से 98% पीपल आर गुड। हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ने के लिए आपकी वेबसाइट में आए हैं, मगर देयर आर सम हैकर्स, देयर इज अ कम्युनिटी जो हैकिंग कर रही है, देयर इज सम कम्युनिटी हु इज प्लेइंग साइबर क्राइम्स, देयर आर फ्यू कम्युनिटीज हु आर इंडल्ज इन वेरियस काइंड ऑफ नेगेटिव एविल थॉट्स, या फिर कई लोगों के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ही डिफरेंट है। तो उन लोगों से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, तो आपकी वेबसाइट में ऐसी कोई भी डिटेल नहीं होनी चाहिए जिससे वो आदमी आपके कंटेंट को हार्म कर सके। सबसे पहली बात कि जो भी चीज आपके आइडियाज है वही किसी ने चुरा ली है, वो भी एक बहुत बड़ी हार्म, बहुत बड़ा हार्म होता है। तो आई डोंट नो कि ऑन विच टॉपिक यू आर राइटिंग, बट जो भी टॉपिक या जो भी कंटेंट हम राइट करते हैं तो उससे पहले उसको हमें पेटेंट कर लेना चाहिए। तो देयर आर वेरियस स्कीम्स। आप अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में करते हो तो उसका कॉपीराइट लेना चाहिए, ट्रेडमार्क उसके बना लेने चाहिए, अपने अपना कर लेना चाहिए पहले उस चीज को, देन हमें ऑडियंस को या फिर सबको बताना चाहिए। तो जब वो चीज मेरी है तो आप उससे कॉपी कर रहा है और तुमने अगर उसको पकड़ा तो यू कैन प्ले अ कॉपीराइट क्लेम। आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन, लीगल एक्शन करवा सकते हो। मगर आपकी कोई भी ऐसी चीजें अवेलेबल है आपकी वेबसाइट में जो आपकी पर्सनल है, जिससे वो आपको हार्म कर सकता है, आपके नंबर्स ले सकता है, आपके पोस्टल एड्रेसेस ले सकता है, तो इस तरीके की चीजों से हमें बचना चाहिए। और कोई भी नेगेटिव कंटेंट भी नहीं रखना चाहिए जो कि हमें साइबर क्राइम या फिर फॉर एग्जांपल मेरा वेबसाइट जो भी कंटेंट लेके आएगा उस कंटेंट के लिए आई विल बी फेमस। सो माय कंटेंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव कंटेंट, ये भी होना चाहिए। तो एम आई क्लियर विद योर क्वेश्चन? या मैम। Okay. May I know on which topic you are writing a blog? मैम पहले मैं हैकिंग पे लिखता था, मतलब अभी स्टॉप है, पर पहले लिखता था हैकिंग पे। हैकिंग पे आपने एथिकल हैकिंग फिर पढ़ी होगी, एथिकल हैकिंग? नहीं मैम, एथिकल हैकिंग, ब्लैक हैट सब आता है, पर यूजिंग यूट्यूब से सीखा है, कोर्स वर्स कुछ किया हुआ नहीं है। कोर्स करने की जरूरत भी नहीं होती, हर चीज प्रैक्टिस से आ जाती है। कोर्स आपको हर जगह पेमेंट करके कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। बट ये है कि अगर आपने हैकिंग पढ़ी है तो उसको करके देखनी है। एथिकल हैकिंग कैन बी प्रैक्टिस। तो वो आपको जब तक करके नहीं देखेंगे तो वी कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट। कोई भी चीज करने से, मतलब आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो प्रैक्टिकली उसको कर लेना, एक बार करके देखना एथिकली, तो यू विल बी हैविंग सम वेरी वास्ट होराइजन ऑफ योर नॉलेज। फिर उसके बाद जो आप कंटेंट लिखोगे वो बहुत पसंद किया जाएगा क्योंकि उसमें नॉवेल्टी होगी। यस, एम आई क्लियर? यस यस। या ओके, यस, ओके, ओके। एनीबडी एल्स? Deepak sir, any important queries in the chat? I cannot read the chats because there are many joining messages or anything important in the chat or the queries by the students? No, madam. It was not. Okay. It is not in chat. Any query is not in the chat. Okay, so audio message, through audio they can ask their doubts, or if they are not having any doubts, we can close the session. So, students, do we have any doubt? Any more doubt? You can ask. Okay, I don't think we have any more doubt. Okay, sir.
Right, so we can conclude the session. Thank you, Survi Madam, for giving such an informative webinar on search engine optimization. We are grateful for the time you spared for us and efforts you took to share your knowledge and experience with us. It was really a good session for the students to understand the buzzword SEO for them. Also, knowledge of SEO plays a vital role for nowadays in the world of digital marketing. To be more precise, in the world of internet marketing, may it be for new search or image search or academic search or industry specific search or any kind of search. Thanks to Vasya sir and Prerna madam for organizing this webinar. I would also like to thank students for joining the webinar and having a good interactive question and answer session at the end. I hope students will get motivated through such webinars on interesting topics like SEO and all. It will surely help them in their professional career, especially who will choose their career in web development or build their own website. Thank you so much, everyone. Should we end the session if nothing else is remaining? Any question, any query apart from this? I mean, okay, so we'll end this session now. Thank you so much. मैंने भरा है। Students, you can leave now. मैं लगता हूँ तो परसों